بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اعجاز بابو خان کا السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اردو ناول کی تاریخ۔ وہ تمام امیدوار جو سندھ پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر اردو کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ آئیے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ نوویلا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے انوکھا، نرالا یا اچھوتا۔ اصطلاحی معنوں میں ایسی کہانی جس میں پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہو ناول کہلاتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اس قدر دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناول افسانے سے اس طرح مختلف ہے کہ افسانے میں زندگی کا کوئی ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے، اس کے برعکس ناول میں پوری زندگی کی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ ناول داستان سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ داستان میں خیالی اور مثالی دنیا کی کہانی پیش کی جاتی ہے اور مافوق الفطرت عناصر اور کردار و واقعات کی بھرمار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ناول میں حقیقی دنیا کی عکاسی حقیقی کرداروں کے ذریعے کی جاتی ہے، جو ہمیں حقیقی اور بالکل فطری محسوس ہوتے ہیں۔ اردو میں ناول نگاری کی اقسام کے حوالے سے معاشرتی، کرداری، واقعاتی، رومانی، جاسوسی، تاریخی، اصلاحی اور سماجی ناول نگاری کے نام لیے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اردو میں جاسوسی ناول نگاری اور تاریخی ناول نگاری کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ناولوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جانا چاہیے، سماجی یا معاشرتی، کیونکہ ناول میں بنیادی موضوع انسانی زندگی ہوتی ہے اور انسانی زندگی کے ہی مختلف افعال یا واقعات کو موضوع بنایا جاتا ہے، اس لیے اسے سماجی یا معاشرتی ناول کہنا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ تمام ناولوں کے جو موضوعات ہیں اس اعتبار سے اگر علیحدہ کیا جانا شروع کیا تو پھر ناول کی جو اقسام ہیں وہ سینکڑوں میں پہنچ جائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ جاسوسی اور تاریخی ناول نگاری کو علیحدہ کیا جائے۔ تاریخی اور جاسوسی ناول کو علیحدہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جاسوسی ناولوں میں مبالغہ آمیزی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جبکہ تاریخی ناول نگاری میں بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ تاریخی واقعات کو درست طریقے سے، صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا اور اس میں حقیقت پسندی نہیں ہوتی اور اس میں بہت ساری باتیں غیر حقیقی بیان کی جاتی ہیں اور اس میں کرداروں کے حوالے سے مبالغہ آمیزی بھی ہوتی ہے۔ لہذا جاسوسی اور تاریخی ناول نگاری کو علیحدہ کر کے اگر ہم باقی تمام ناولوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کریں تو بہتر ہوگا۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز 1869 میں ہوا۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ انہوں نے اپنا ناول مرات العروس 1869 میں لکھا۔ اس ناول کے علاوہ ڈاکٹر محمود الہی مولوی کریم الدین کی تحریر خط تقدیر کو بھی اردو کا پہلا ناول قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ایک تمثیلی قصہ ہے جس کے مطالعے کے بعد مختلف محققین اور مورخین نے اسے تمثیل قرار دیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد پہلے مصنف ہیں جنہوں نے حقیقی زندگی کی عکاسی اپنی تحریروں میں کی۔ مرات العروس کے کردار اس میں بامسمہ ہونے کے باوجود، تمثیلی ہونے کے باوجود، جو ان کی کہانی ہے وہ ہماری حقیقی دنیا کی عکاسی کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے جن میں 4 بہت مقبول ہوئے۔ پہلا ناول مرات العروس، اسی کا دوسرا حصہ بنات النعش کے نام سے لکھا۔ اس کے علاوہ توبۃ النصور، ابن الوقت ان کے اہم اور مقبول ناول ہیں۔ ان کے علاوہ ایامہ، رویائے صادقہ اور فسانہ مبتلا کے نام سے بھی ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کردار اور مکالمہ نگاری کے ذریعے اپنے ناولوں کو پر اثر بنایا۔ اس زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول بہت زیادہ
मकबूल हुए। डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद जो पहले अहम नावल निगार हमें नज़र आते हैं वो रतन नाथ सरशार हैं। रतन नाथ सरशार की अदब में अहमियत उनके मशहूर नावल फ़साना आज़ाद से है। फ़साना आज़ाद के अलावा भी जाम सरशार, सैर कौसार और कामनी के नाम से उनके नावल शाया हो चुके हैं, लेकिन उनकी असल अहमियत उनके तसनीफ़ फ़साना आज़ाद से है। फ़साना आज़ाद को दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी भी करार दिया जाता है। फ़साना आज़ाद के अहम किरदारों में आज़ाद, हुस्न-आरा और खोजी शामिल हैं। खोजी एक मिज़ाहिया किरदार है जो इस नावल के हवाले से बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुआ। उसी ज़माने में एक ख़ातून नावल निगार भी सामने आई। उर्दू की पहली ख़ातून नावल निगार रशीदतुन्निसा बेगम हैं। उन्होंने अपना नावल इस्लाहुन्निसा के नाम से 1881 में तहरीर किया। उसके बाद ख़वातीन ने भी नावल निगारी में अहम किरदार अदा किया। मिर्ज़ा हादी रुस्वा वो पहले अहम नावल निगार हैं कि जिन्होंने उर्दू को एक बेहतरीन नावल दिया। 1899 में मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उमराव जानादा के नाम से एक नावल लिखा, जो उर्दू का पहला बड़ा नावल करार दिया जाता है। नावल उमराव जानादा में लखनवी तहज़ीब की अक्कासी होने के साथ साथ उसमें जिन किरदारों को जिस खूबसूरती और मयारी अंदाज में मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने पेश किया वो अपनी मिसाल आप है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने इस नावल में एक लड़की अमीरन के किरदार को पेश किया है, जो बचपन में अगवा हो जाती है और बाद में वो तवाइफ के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारती है और उमराव उनका नाम पड़ जाता है। इस नावल के अहम किरदारों में उमराव जानादा के अलावा खानम का किरदार भी निहायत मयारी और अहम किरदार माना जाता है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के दीगर अहम नावलों में ज़ात शरीफ और शरीफ ज़ादा के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के बाद 20वीं सदी का आगाज़ होता है। 20वीं सदी में जो पहले अहम अफ़साना निगार सामने आते हैं उनमें मुंशी प्रेमचंद का नाम काबिल ज़िक्र है। मुंशी प्रेमचंद अफ़साना निगारी के हवाले से तो मारूफ़ हैं ही, लेकिन उन्होंने उर्दू में बहुत अहम नावल्स भी लिखे। उनके अहम नावलों में बाज़ार हुस्न, गौदान, बेवा, नरमला, मैदान अमल और गौदान वगैरह शामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने नावलों के ज़रिए उस ज़माने के आम लोगों की मसाइल की अक्कासी भी की है। बाद में इन्हीं मसाइल को बुनियाद बनाकर तरक्की पसंद तहरीक का भी आगाज़ हुआ। इस लिहाज से अगर तरक्की पसंद तहरीक के पेशरू के तौर पर मुंशी प्रेमचंद को याद रखा जाए तो बेजाना होगा। मुंशी प्रेमचंद के अलावा राशिदुल खैरी भी उस ज़माने के अहम नावल निगार हैं। राशिदुल खैरी एक इस्लाही नावल निगार हैं। उन्होंने इस्लाही नुक्ता नज़र से नावल्स लिखे। उनके अहम नावलों में समरना का चाँद, सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और बिंतुल वक्त के नाम काबिल ज़िक्र हैं। उनकी इसी इस्लाही पहलू की सबब उन्हें उर्दू में ख़वातीन का सरसैयद भी कहा जाता है। 20वीं सदी में जो दीगर अहम नावल निगार हमारे सामने आते हैं आज़ादी से पहले, उनमें अज़ीज़ अहमद का नाम भी काबिल ज़िक्र है। अज़ीज़ अहमद के इब्तिदाई नावलों में हविस, आग और गुरेज शामिल हैं, जो उन्होंने आज़ादी से पहले लिखे। आज़ादी के बाद भी उनका एक नावल ऐसी बुलंदी और ऐसी पस्ती के नाम से शाया हुआ, जो बहुत मकबूल हुआ। सज्जाद ज़हीर ने 1938 में एक नावल लंदन की एक रात लिखा। ये नावल इस लिहाज से ख़ास अहमियत का हामिल है कि इस नावल में पहली मरतबा शऊर की रूह की तकनीक इस्तेमाल की गई, जो बाद में उर्दू के अहम तरीन नावलों में भी इस्तेमाल की गई। इसमें चुगताई का नाम अफसाना निगारी में बेबाक अफसाना निगार के तौर पर मारूफ है। उर्दू नावल निगारी में भी उनका एक अहम किरदार है। इसमें चुगताई ने ज़िद्दी और टेढ़ी लकीर के नाम से उम्दा नावल लिखे। कृष्ण चंद्र का नाम भी अफसाना निगारी के अलावा नावल निगारी में भी मारूफ है। उन्होंने आज़ादी से कबल शिकस्त के नाम से एक अहम नावल लिखा, जो तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर नज़र आता है। आज़ादी के बाद उनका नावल गद्दार भी तक़सीम और हिजरत के पस मंज़र में मशहूर है। इसके अलावा एक उनका तंज़िया और मिज़ाहिया नावल एक गधे की सरगुज़िश भी उर्दू में मारूफ है। डॉक्टर मोहम्मद एहसन फ़ारूकी एक नक्काद के तौर पर भी मारूफ हैं, लेकिन नावल निगारी के मैदान में भी उन्हें ख़ास पजीराई हासिल हुई। उनका नावल शाम अवध गो के आज़ादी से पहले शाया हो चुका था, लेकिन ये नावल बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। शाम अवध लखनवी तहज़ीब के ज़वाल का मरसिया है, जिसमें लखनवी तहज़ीब के जो मिटते हुए आसार हैं उसे मौजू बनाया गया है।
संगम डॉक्टर मोहम्मद एहसन फारूकी का दूसरा अहम नावल है, जिसमें उन्होंने कुरतुल हैदर के नावल आग का दरिया की टेक्निक को बरतते हुए मुसलमानों की 1000 साल तारीख को मौजू बनाया है। इस नावल का मरकज़ी किरदार मुस्लिम है। आज़ादी के बाद जो अहम तरीन नावल निगार हमारे सामने आते हैं, उनमें कुरतुल हैदर का नाम सबसे मुनफरिद है। कुरातुल हैदर ने 1949 में मेरे भी सनम खाने से नावल निगारी का आगाज़ किया। सफ़ीना गमे दिल, आखिरी शब के हमसफ़र और दीगर नावलों के ज़रिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनका सबसे मशहूर नावल आग का दरिया है। आग का दरिया एक तारीखी अंदाज में लिखा गया नावल है। उन्होंने इस नावल में 2500 साल तारीख को मौजू बनाया है। आग का दरिया के अहम किरदारों में गौतम नीलम्बर, कमाल, चंपा और सरल के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ये किरदार सिर्फ मज़हब के नुमाइंदे नहीं, बल्कि हर अहद में ज़िंदा नज़र आते हैं। ये नावल उर्दू के अहम तरीन नावलों में सबसे बुलंद मुकाम रखता है। आज भी उर्दू का सबसे बड़ा नावल आग का दरिया को करार दिया जाता है। आग का दरिया से ही मुतासिर होकर मोहम्मद एहसन फारूकी ने अपना नावल संगम लिखा। कुरतुल हैदर के दीगर अहम नावलों में गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम के नाम भी काबिल ज़िक्र हैं। कुरतुल हैदर के अलावा जो अहम नावल निगार हमें पाकिस्तान के बाद नज़र आते हैं, वो शौकत सिद्दीकी हैं। शौकत सिद्दीकी ने 1958 में अपना पहला अहम नावल खुदा की बस्ती लिखा। इस नावल के ज़रिए शौकत सिद्दीकी ने आज़ादी के बाद पैदा होने वाले इंसानी अलमिए को मौजू बनाया। ये नावल अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। इस नावल पर शौकत सिद्दीकी को आदमजी इनाम भी मिला। शौकत सिद्दीकी का दूसरा नावल जांगलूस तकरीबन 30 बरस बाद सामने आया, लेकिन जांगलूस भी उर्दू के अहम तरीन नावलों में बड़ा बुलंद मुकाम रखता है। अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें भी आग का दरिया के पैटर्न में लिखा गया। आग का दरिया 2500 साल तारीख का अहाता करता है। इसी तरह मोहम्मद एहसन फारूकी का नावल संगम 1000 साल मुस्लिम तारीख का अहाता करता है। तो उदास नस्लें में 1857 से 1947 तक की जो तहरीक आज़ादी है, उसको मौजू बनाया गया है। ये नावल भी उर्दू के अहम तरीन नावलों में बुलंद मुकाम रखता है। खदीजा मस्तूर का नाम उनके नावल आंगन के साथ हमेशा ज़िंदा और ताबिंदा चला आ रहा है। आंगन खदीजा मस्तूर का बेहतरीन नावल है, जिस पर उन्हें आदमजी अदबी इनाम भी मिला। ये नावल आज़ादी और तकसीम और हिजरत के पस मंज़र में लिखा गया बेहतरीन नावल है। इसके अलावा ज़मीन के नाम से उन्होंने इसी नावल का दूसरा हिस्सा भी लिखा, जिसे भी पजीराई हासिल हुई। मुमताज़ मुफ्ती का अलीपुर का एली उर्दू के इब्तिदाई ज़ख़ीम तरीन नावलों में शामिल है। अलीपुर का एली को इब्ने इंशा ने नावलों का गुरु ग्रंथ करार दिया है। अलीपुर का एली की एक अहमियत ये है कि उसे उस ज़माने में आदमजी अदबी इनाम से नहीं नवाजा गया। अलीपुर का एली के मुकाबले में जमीला हाशमी के तलाशे बहारों को आदमजी अदबी इनाम मिला। इस बात से नाराज़ होकर अलीपुर का एली के नाशिर अशफाक अहमद ने इस नावल के असरे वर्क पर एक पट्टी लगाई, जिस पर लिखा था कि ये इस नावल को आदमजी अदबी इनाम नहीं मिला। अलीपुर का एली एक सवानही नावल है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुआ। जमीला हाशमी का नावल तलाशे बहारा, जिसे अलीपुर का एली के मुकाबले में आदमजी इनाम से नवाजा गया, जमीला हाशमी का पहला अहम नावल है। ये जमीला हाशमी उर्दू में शायराना नसर के हवाले से मारूफ हैं। उनमें उन्होंने शायराना नसर का एक बेहतरीन नमूना अपने दूसरे और तारीखी नावल दश्ते सूस में पेश किया। दश्ते सूस में हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को मौजू बनाया गया और ये एक तारीखी नावल है। इस नावल को भी अपने उसलूब की वजह से बहुत शोहरत हासिल हुई। दीगर अहम नावल निगारों में अल्ताफ़ फातमा के नावल दस्तक ना दो और चलता मुसाफिर, इंतज़ार हुसैन के नावल बस्ती और आगे समंदर है, काबिल ज़िक्र हैं। फजल करीम फजली का नावल खूने जिगर होने तक कहते बंगाल के पस मंज़र में लिखा गया बेहतरीन नावल है। बानो कुदसिया का राजा गिद्ध भी उर्दू के बेहतरीन नावलों में शामिल है। इस नावल में फ़लसफ़ा हलाल और हराम को पेश किया गया है। इस नावल के अहम किरदारों में सीमी, कयूम और आफ्ताब के और डॉक्टर सुहेल के नाम काबिल ज़िक्र हैं।
मुस्तनसर हुसैन तारड़ इब्तिदा में सफ़रनामा निगार के तौर पर तो मारूफ थे ही, लेकिन बाद में उन्होंने नावल निगारी में भी शोहरत हासिल की। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बेहतरीन नावलों में बहाव, राख, किला जंगी, डाकिया और जोलाहा, मंतको तैर जदीद और खसो खाशाक ज़माने शामिल हैं। उर्दू के दीगर अहम नावलों में हयातुल्लाह अंसारी का लहू के फूल, हकीम नावलों में ऐसे एक नावल है रहीम गुल का जन्नत की तलाश, जो सयाहती पैटर्न में लिखा गया बेहतरीन नावल है। दीगर अहम नावलों में राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मेली सी, रहीम अनवर सज्जाद का जन्म रूप, फ़हीम आज़मी का जन्म कुंडली, शम्सुर रहमान फारूकी का कई चांद थे सरे आसमान और मिर्ज़ा अतहर बेग का गुलाम बाग के नाम काबिल ज़िक्र हैं। शम्सुर रहमान फारूकी ने कई चांद थे सरे आसमां के नाम से 2005 में नावल लिखा, जिसमें कदीम लखनवी तहजीब को बुनियाद बनाकर उस ज़माने के एक अहम किरदार वज़ीर बेगम के को नुमाया किया गया है। वज़ीर बेगम दाग दहलवी की वालदा का किरदार है। इस किरदार को शम्सुर रहमान फारूकी ने बड़ी चाबुक दस्ती से, बड़ी महारत से पेश किया है और इसके पस मंज़र में पूरी लखनवी तहजीब और उस ज़माने की जो अहम रिवायात हैं उसे भी अपने नावल का मौजू बनाया है। नावल निगारी की तारीख में तकरीबन तमाम अहम नावलों का मुख्तसरन जायज़ा तो ले लिया गया है। नावल की एक दूसरी किस्म तारीखी नावल भी है। तारीखी नावल निगारी के हवाले से अब्दुल हलीम शरर का नाम काबिल ज़िक्र है। अब्दुल हलीम शरर उर्दू में तारीखी नावल निगारी के बानी करार दिए जाते हैं। उन्होंने मलकुल अज़ीज़ वजीना के नाम से उर्दू का पहला तारीखी नावल लिखा। बाद में उनका एक नावल फिरदौस बरी उर्दू के तारीखी नावल निगारी की में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। तारीखी नावल निगारी के हवाले से दूसरा अहम नाम नसीम हिजाजी का है। नसीम हिजाजी ने दास्तान मुजाहिद, मोहम्मद बिन कासिम, खाक व खून और यूसुफ बिन ताशफीन जैसे अहम नावल लिखे। जासूसी नावल निगारी में ज़फ़र उमर का नाम पहले जासूसी नावल निगार के तौर पर लिया जाता है। उन्होंने नीली छतरी के नाम से पहला नावल लिखा। ज़फ़र उमर पुलिस के महकमे से वाबस्ता थे और उन्होंने नीली छतरी के नाम से उर्दू का पहला जासूसी नावल लिखा। दीगर जासूसी नावल निगारों में इब्न सफ़ी का नाम सबसे नुमाया है। इब्न सफ़ी ने इमरान सीरीज़ और दीगर अहम किरदारों के साथ उर्दू के बेहतरीन जासूसी नावल तख्लीक की है। नाजरीन, आज हमने उर्दू में नावल की तारीख के हवाले से मुख्तसरन जायज़ा लेने की कोशिश की है। जब हम अहम शख्सियात और अहम मुसन्निफ़ीन को पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे जिन मुसन्निफ़ीन का तज़किरा किया जाए उनके अहम नावलों के किरदारों और कहानी के हवाले से भी जायज़ा ले लिया जाए। एक बात और जो उर्दू नावल के हवाले से याद रखी जाने के काबिल है वो ये है कि उर्दू में जो नावल निगारी के हवाले से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो उर्दू के अहम नावलों और नावल निगारों के बारे में है। इसके अलावा अहम नावलों के किरदारों के बारे में भी पूछा जाता है। इस सिलसिले में एक तजवीज़ है कि उर्दू में नावल की तारीख के नाम से डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान का पीएचडी का मकाला है जो पाकिस्तान में उर्दू नावल की तारीख के नाम से अंजुमन तरक्की उर्दू से शाया हुआ है। इस किताब में उर्दू नावल के तमाम अहम तरीन नावलों का मुख्तसर जायज़ा भी लिया गया है। अगर आप उर्दू नावल की तारीख को बेहतरीन अंदाज में समझना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप इस किताब को ले लीजिए और इस किताब के ज़रिए न सिर्फ अहम नावलों के मौज़ूआत उन बल्कि अहम रुझानात के साथ साथ उन किरदारों और कहानियों के बारे में भी तफसीलात आपके सामने आ सकती हैं। इस तरह आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने का इम्कान भी है, क्योंकि नावल एक तवील कहानी होती है और तमाम अहम नावलों को पढ़ना और उनका जायज़ा लेना यकीनन इस वक्त आपके लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा वो किताब बहुत आसानी फराहम कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।